Let's start with date functions. Before that we have learned string functions and numeric functions. So in date functions means when we are going to perform any type of operation on date. As if we are talking about data type, we have mainly three types of data: string, numbers and date. So today we will learn how we can do functions on or perform functions on date. So as you can see on the screen, the very first function I have written, select current date, means current date means होता है current date. If you want to know what is the current date, what is the date today, current means आज की date क्या है. You can see on the screen I have written in three ways. The same, to know the current date, I have written the syntax in three ways. Select current date, bracket, select current date, current underscore date, bracket, select current underscore date, semicolon. So you will get the same answer. Same, if you want to know the current date, you can write in any three forms. So if you will click on this and execute, you will get the same. See, current date, year, month and date, and same you will get. So according to today is 26th May 2020. So this is the very first function which help us to know the current date. Now second is date function. For this I am going to give date also and time also. Suppose I have taken today's date, that is 2020-05-26. Then time also I am going to write. So if we are talking about time, in SQL we write time, hours, minutes and seconds. So suppose hours are 01, 02, that is a minute, and seconds are suppose 03. Okay, so this is 01 is hour, minutes and second, and should be in two digits according to syntax. So when you will execute this query, what is written here? Date, and I have written date and time both inside this value. It means it will retrieve the date only. See, so from these two it has extract only date, and date is what? 2020. 5 means May, 26th May 2020. So this is the second function which we have learned, that is how we can retrieve the date if we have both date and time. Now we are going to learn next one, that is select month. I just want to know what is the month. So in month it will retrieve the month from the date past. So suppose I have written 2020, month is suppose I have written February, that is second, and date is suppose third. So 2020 क्या है? This is a year, 02 is a month and 03 is a date. Okay, जो day है, date, that is from 1 to 31, और month होते हैं 1 से 12, and years it is in 4 digits. तो अब ये इसमें से क्या रिट्रीव करेगा? सिर्फ मंथ, और मंथ क्या है? That is 02, that is February. So it will not display the name of a month, it will display the month only. See, 2, तो 2 क्या है? Month है, so it will display the month in form of numbers. So month is 2, that is February. Now year, suppose I want to extract year. अब मुझे year extract करना है, ये देखो, ठीक है. तो year कौन सा है? 2020. तो I think its answer should be 2020. See, तो इसमें से इस year date में से इसने क्या extract किया है? Only year, and year is 2020. Now next query is we are going to extract. Let me copy the same query. Now I want to extract the day name. What is day name? Means from Monday to Sunday. Day name. अब इस डेट में से ये मुश्किल होगा पता लगाना कि आज कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बट विद द हेल्प ऑफ पुटिंग दिस डे नेम, इट्स वेरी इजीली टेल अस कि व्हाट इज द डे टुडे. सी, टुडे इज Monday according to this date. Date is 3rd
3rd February 2020. तो 3rd February 2020 को क्या था? मंडे. तो डे नेम मीन्स इट विल डिस्प्ले द नेम ऑफ अ डे फ्रॉम मंडे टू संडे. अगर सपोज यू वांट टू नो कि आज 5th मई की अगर हम बात करें 26 5th मई, तो आज का आंसर क्या आना चाहिए? ट्यूसडे. सी, so in this way this is the 5th function which we have learned today, that is day of name. Okay, now we are going to learn 6th function, that is day of month. means month का कौन सा दिन है. मंथ का कौन सा दिन है मीन्स आपका 1 से लेके 31 तक नंबर आएगा. आपको पता है जो मंथ होते हैं उसमें 1 से लेके 30 तक मंथ होते हैं एंड डेज होते हैं. तो डे ऑफ मंथ, तो वैसे तो ये हमें दिख रहा है जो डेट है दैट इज़ अ डे ऑफ अ मंथ. अगर हम इसका आंसर प्रिडिक्ट करेंगे तो वेरी इजीली वी कैन प्रिडिक्ट. यू कैन सी दिस इज अ डे. मंथ का कौन सा डे है? ये 26. तो 26 आंसर आ गया. सो डे ऑफ मंथ इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट डे नेम. उसके बाद आता है डे ऑफ वीक. अगर मुझे ये पता करना है कि वीक का कौन सा दिन है, यानी कि 1 से लेके 7 तक, वीक डेज आपको अच्छी तरह पता है ये 7 होते हैं. तो 1 से लेके 7 तक में कौन सा डी, जैसे ट्यूसडे है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 3, क्योंकि संडे से शुरू होता है. संडे, मंडे, ट्यूसडे. तो संडे टू सैटरडे तक में कौन सा डे है? ये आज 3rd डे, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो उसके अकॉर्डिंग डे ऑफ वीक कौन सा है? 3. तो इट इज़ क्लियर. डेट में वो डेट रिट्रीव करेगा, ईयर में रिट्रीव करेगा ईयर ओनली. डे नेम में मंडे से लेके संडे से लेके सैटरडे तक कौन सा डे है. डे ऑफ मंथ में जैसे 1 से लेके 31 तक डेज होते हैं या 28 डेज होते हैं, 30 होते हैं, उसमें से आपको बताएगा. बट इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट क्योंकि हम डेट से बता सकते हैं. और डे ऑफ वीक में आपको ये बताएगा कि आज कौन सा वीक का कौन सा दिन है. 1 से 7 में ही इसका आंसर आएगा. उसके बाद आता है डे ऑफ ईयर, मतलब ईयर का कौन सा दिन है. तो एक ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं. तो या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब जैसे ये 5th मंथ है और 5th मंथ की आज 26 तारीख है, तो या तो आप जनवरी का 31, फरवरी का 28 और इस तरह से काउंट करो, या फिर ये आपको खुद ही बता देगा. मतलब आज ईयर का कौन सा दिन है, यानी कि 1 से लेके 365 डेज में हम कितने दिन, ये देखो आज 147 है. इट मीन्स इस ईयर के 147 डेज पास हो चुकी हैं. तो आज इस ईयर का 147 डे है. उसके बाद आता है नाउ. नाउ क्या होता है? ये हमें ये बताता है कि आज कौन सी डेट और टाइम है. जैसे करंट डेट में हेल्प यू ओनली नो व्हाट इज द डेट. ठीक है, जैसे हमने करंट डेट किया था तो इसने हमें सिर्फ डेट प्रिडिक्ट की थी, पर नाउ में ये हमें क्या प्रिडिक्ट करेगा? डेट एंड टाइम. सी, डेट क्या है और टाइम क्या हो रहा है? 18:05, यानी कि 6:05 और 53 सेकेंड्स. उसके बाद एक और फंक्शन होता है सिस डेट. तो ये भी नाउ की तरह है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी. सेलेक्ट सिस डेट. तो नाउ और सिस डेट जब आप इन दोनों को करोगे तो आपको इन दोनों में क्या बताएगा? व्हाट इज द डेट एंड टाइम. अब इसके बाद मैं आपको एक और फंक्शन दिखाती हूँ, सेलेक्ट नाउ. सेकेंड्स के बाद बताएगा. ये देखो, अब आपको लगेगा कि मैम नाउ और सिस डेट वैसे तो एक हैं. देखो सिस डेट में भी इसने डेट एंड टाइम प्रिडिक्ट किया था और नाउ में भी. अब मैंने यहाँ पे नाउ लिखा है जो डेट और टाइम बताएगा. स्लीप का मतलब है 2 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको स्लीपिंग मोड पे डाल दिया था, और ये नाउ है. अब आप ध्यान से देखो, टाइम पे देखो, 18:06 44 सेकेंड्स था स्लीपिंग टाइम, मतलब 44 सेकेंड्स हुए थे उस टाइम, और 2 सेकेंड के बाद भी वे 44 पे ही है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाउ और सिस डेट में क्या डिफरेंस है. जो नाउ होता है वो हमें टाइम तब रिटर्न करता है जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जो फंक्शन है वो स्लीपिंग टाइम के पहले जो था 44 सेकेंड पे ध्यान दीजिए,
44 आ रहा है यहाँ पे 18644, और यहाँ नाउ में भी 18644 है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, ये आपको रिटर्न करेगा जब